students, Standard 10, Subject Social Science, Chapter number 6, Places of Indian Cultural Heritage, Session 3. Today we will continue our discussion about different historical places of India which were constructed during the regime of different rulers which are having importance as a tourist spot or as a pilgrimage center. So the places of cultural heritage of Gujarat. Now we will discuss about the different places which are having the importance of cultural heritage in our Gujarat state. Gujarat has the foremost place in the field of sculpture and architecture. Many beautiful architectural sites can be seen here. Example, cave architectures, temples, forts, wow, that means step well, arcs, etc. Now let us know about the places of cultural heritage of Gujarat. तो गुजरात के जो इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है उसके बारे में आइए देखते हैं. First, Dholavira and Lothal. Already about these we have discussed in chapter 3 in detail. Then too, let's take a quick view. Dholavira and Lothal were the main cities of Indus Valley civilization. It is situated, especially Dholavira is situated in a Khadir at a Bhachau Taluka in Kutch district. It is known for its ideal town planning, whereas Harappan culture was renowned as a center of trade and commerce. धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का एक सिटी है जो खादिरबेट भचाऊ तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. स्पेशली ये सिटी अपने आइडियल और वेरी सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग के लिए जो हरप्पन कल्चर के टाइम पे एज अ ट्रेड और कॉमर्स के सेंटर के रूप में इवॉल्व हुआ उसके लिए फेमस है. Dholavira 5000 years ago from today, bead making factories and ornament making shells were found out from the Dholavira. क्या से 5000 साल पहले वहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज चलती थी, ऑर्नामेंट मेकिंग वर्क हो रहा था, उसके है ना कुछ अवशेष उस समय के आज मिले हुए हैं. लोथल. It is also situated near the Ahmedabad-Bhavnagar highway, is an architectural place which was main center of trade and commerce as well as facilitated port of Harappan culture in the ancient time. हमने देखा था कि लोथल में बैक साइड में बहुत बड़ा डॉकयार्ड हुआ करता था जहाँ पे स्पेशली एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स शिप्स को प्रॉपरली और सेफली एंकर किया जाए. बड़े बड़े वहाँ पे गोडाउन्स अवेलेबल थे जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता था और वहाँ से फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था. तो इस तरह से लोथल एक इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में भी इंडिया में फेमस है. जूनागढ़. इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव ऑफ खापराकोडिया, वाव, ओल्ड राजमहल, नवघण वेल, टॉम्ब ऑफ महाबत खान एंड टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर आर द प्लेसेस ऑफ सीइंग. भवनाथ फेयर इज हेल्ड इन द फुटहिल्स ऑफ गिरनार ऑन अ महाशिवरात्रि. और आज के टाइम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है महाशिवरात्रि के टाइम में गिरनार माउंटेन के फुटहिल्स में हेल्ड किया जाने वाला भवनाथ फेयर. अहमदाबाद. Ahmedabad could be known as a historical city. Fort of Bhadra, Jama Masjid, Mosque of Queen Sipri, Rosa of Sarkhej, Kakaria Lake, Shaking Minarets, that is Jholta Minara, Siddhi Sayyad Nijali, Temple of Hathi Singh, Mosque of King Roopmati are important places of architectures of Ahmedabad which are the great spot for visits and attraction. The shaking minarets outside Sarangpur Darwaza in Raipur Gomtipur are well known for its unsolved secret of vibration.
कि जो झूलता मिनारा है उसका जो वाइब्रेशन है वो जो है ना, उसमें जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते थे वो क्यों हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सा रिसर्च हो चुका है, बट अभी तक उसका सीक्रेट पता नहीं कर पाए हैं। वो मेन टूरिस्ट स्पॉट का अट्रैक्शन है। द सिद्धि सैयद ग्रिल इज फेमस फॉर इट्स जियोमेट्रिकल क्रिएशन एंड माइन्यूट कार्विंग, जो इमेज में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारीकी से बहुत माइन्यूट कार्विंग किया गया है विद द सिंपल टूल्स, जो आर्किटेक्चर का एक बेस्ट नमूना है। पाटन इन नॉर्थ गुजरात। स्टूडेंट्स, आपने ये जो है ना अपसाइड इमेज है, ये एक वाव और एक वेल का है, जो शायद आपने किसी है ना मॉडर्न मूवीज में भी देखा होगा, स्पेशली मूवी पद्मावत। सहस्त्रलिंग लेक इन पाटन, स्टेपवेल ऑफ क्वीन रानीनी वाव एंड रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर। Stepwell of Queen, that is Ranini Vav, Udayamati, Queen of Bhimdev I, built the Vav. Stepwell to cater the need of water to her subjects, which is known as the Stepwell of Queen Ranini Vav. कि ये एक टाइप का वेल है जहाँ लोगों की वाटर रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई किया जाता था, बट ये जो वेल है वो एक यूनिक वे में क्रिएट की जाती थी, जिसमें डिफरेंट लेवल से होते हुए नीचे जाना पड़ता था पानी कलेक्ट करने के लिए, और इसी वजह से एक है ना स्टेप फॉर्मेशन में ये क्रिएट होता था, और इसी वजह से उसको स्टेप वेल कहा जाता है। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस वाव एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इन 2015 और 2014 में यूनेस्को ने भी इस रानीनी वाव यानी स्टेप वेल ऑफ क्वीन उदयमती को अपने यूनेस्को साइट में या यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया है। दिस वाव इंडिकेट्स द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर द पब्लिक यूजेज इन एंशंट इरा। सिद्धराज जयसिंह built a lake named Sahasralinga Lake in 1140 AD. The ruins of Rudra Mahalay in Siddhpur suggest the grandeur of palace, which is situated 26 km away from Patan. पाटन से 26 किलोमीटर दूर सिद्धपुर आया हुआ है, जहाँ पे रुद्र महालय के आज रूइंस ही अवेलेबल है, जो हार्डली एक लिमिटेड स्टोन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल है, पर फिर भी वो हमारे गुजरात के, इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस में एज अ कल्चरल हेरिटेज हमारे पास अवेलेबल है। Apart from the fort at Vadnagar, Sarmishta Lake and Kirti Arcs are worth seeing monuments in our Gujarat. Arcs are created on the two erected pillars, creating the shapes like a bow. Shamlaji Temple, situated on the bank of Meso River, is an ancient place of pilgrimage. This art of architecture is marvelous, extraordinary, very minute. Many stupas and viharas were also built in Gujarat during the Kshatrap period. The remains of Buddhist stupas are found from the Bordevi of Junagadh district, Devni Muri near Samlaji, Intwa stupa in Girnar near Junagadh. Beside these, many other architectures of Devni Muri, Baba Pyara, Uparkot, Khapra Kodia, Khambhalia, Tadaja, Sana, ढाक, जिंजूरी जार, काड़िया डूंगर एट्सेट्रा आर सीन। ये सभी केव आर्किटेक्चर्स के टाइम पे हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेपवेल ऑफ अडालज नियर द गांधीनगर, स्टेपवेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, आदिकाडी स्टेपवेल एट जूनागढ़। अपार्ट फ्रॉम दीज, नडियाद, मेहंदाबाद, उमराट, कापड़ध्वज, वढवाण एंड कलेश्वरी, that is Mahisagar district, are the different example of extraordinary wow architecture. There are many Jain temples of Shethrunjaya mountain at Palitana, Bhavnagar districts. Few of temples were built in 11th century. Taranga pilgrimage is situated on the hill near the Timba village at Khelari Taluka in Mehsana. The temples of Taramati is also situated here. Somnath temple, the main
attraction of Gujarat. At Gir Somnath district and Dwarkadhish temple of Devbhumi Dwarka as the gorgeous historical heritage. The list of Gujarat's cultural heritage has not been yet completed. गुजरात में स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस है बट सभी को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते. सो फॉर अस इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि बहुत बार घूमने फिरने के लिए हम अपने गुजरात स्टेट्स के बाहर जाते हैं, केरला जाते हैं, गोवा जाते हैं, शिमला मनाली जाते हैं. बेटर वी शुड एक्सप्लोर मैक्सिमम लोकेशन अवेलेबल इन अवर स्टेट ओनली फर्स्ट. दोज आर द विच है ना विच आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इम्पॉर्टेंट रीजनल और स्टेट कल्चर. सो नेक्स्ट टाइम you must plan to visit these places. Many such places are there in Gujarat which make our cultural heritage rich and very prosperous. Things to be known. Wow is the well with steps having 1, 2, 3 or 4 opening and 3 to 6, 9 or 12 floors. Nanda, Bhadra, Jaya, Vijaya are the different types of wow. Question for 1 mark question. Places of natural heritage of India which are located in a different states or a different region in India. In exam you may get a question है ना under the objectives related with different locations. South Indian temples of ancient India. Temples of South India are very famous for their different style of architecture. They were made in the Dravidian style of art. They are in pyramidal shape with the multi-story. One attractive stone is placed on its top. सबसे ऊपर हमेशा एक बड़ा स्टोन प्लेस करके पूरे कंस्ट्रक्शन को एक यूनिकनेस और अट्रैक्शन प्रोवाइड किया जाता है. यार्ड ऑफ टेम्पल्स वर वेरी ह्यूज और उसके सामने का जो ओपन एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है. यानी एक लार्ज कैंपस और एरिया में ये पूरा टेम्पल एस्टेब्लिश किया होता है. Many South Indian temples built in ancient times are given below. Mahabalipuram in Mahabalipuram, Tamil Nadu. Kailash Temple in Kanchipuram, Tamil Nadu. Brihadeshwar Temple, Tanjore, Tamil Nadu. Virupaksha Temple, Patakadadal, Karnataka. Parshurameshwar Temple, Bhubaneswar, Odisha. Venkuta Perumal Temple in Kanchipuram, Tamil Nadu. Right, these can be asked in exam under the matchings or 1 mark question. Places of pilgrimage in India. इंडिया के बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे हैं जिनका हमारे लिए रिलीजियस इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस द एंशिएंट टाइम. इंडिया एक है ना रिलीजियस सेंटर जहाँ पे वैरायटी ऑफ रिलीजन एस्टेब्लिश्ड और प्रोपगेट हुए और इसी वजह से एक धार्मिक प्लेसेस के रूप में इंडिया में बहुत से लोकेशंस अवेलेबल है. पीपल ऑफ इंडिया गो ऑन पिलग्रिमेज. ज़्यादातर करके जब भी इंडियंस घूमने फिरने जाते हैं तो उनके प्रायोरिटीज़ में मेजॉरिटीली पिलग्रिमेज सेंटर होते ही हैं. द जर्नी ऑफ चारधाम एंड 12 ज्योतिर्लिंग इंक्लूड्स बद्रीनाथ उत्तराखंड, रामेश्वर तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, Jagannath Puri in Odisha and many more. Moreover, the pilgrimage of 51 Shaktipeeth and Amarnath Yatra are considered one of the most important yatras for the Hindus and Indians. Girnar, that is a Lily Parikrama, Shatrunjaya Pradakshina, Narmada Pradakshina are also having a lot of great importance. इंडिया इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज जो हमने अब तक डिस्कस किया है. इन दिस वे द प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज गिव इंडिया अ यूनिक आइडेंटिटी इन एंटायर वर्ल्ड. आज इन सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चरल वर्क की वजह से इंडिया ने अपने लिए पूरे वर्ल्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटस और प्लेस अचीव कर लिया है. The tourism of India abroad visits Indian art of architecture regularly. इंडिया से और इवन आउटसाइड पार्ट ऑफ द है ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी लोग कॉन्टीन्यूसली ये डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स को
विजिट करने के लिए आते ही रहते हैं। दिस एक्सेलरेटेट्स द बेनिफिट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। इसकी वजह से ये पिलग्रिमेज सेंटर या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और जो प्लेसेस है उनके आसपास के एरियाज़ में दूसरे भी वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं और टूरिज़्म भी बहुत बड़े तरीके से डेवलप हुआ है, जो आज इकोनॉमी को अच्छा खासा इनकम अर्न करके प्रोवाइड कर रहा है। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी लोकेशंस ये सब है वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पाता है। Thus, 32 monuments of Indian cultural and natural heritage now have been included in the World Heritage Site by the UNESCO। और आज इंडिया के जो डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स और पिलग्रिमेज सेंटर या नेचुरल हेरिटेज है जिसके बारे में हमने है ना चैप्टर 1 से लेके अब तक में डिस्कस किया है, उसमें से बहुत 32 मॉन्यूमेंट्स को आज यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया है। एंड दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।